Good morning, student. Once again, I am your teacher Shramveer with the lesson "The Snake and the Mirror," lesson number 5 from the Beehives. It is about a doctor. It is humorous poem, and there's a lot of instances of humor in the story. And this is the rest part of the story. The first videos you have already been sent. You have already been perhaps seen, and this is the remaining part of lesson number 5, the snake and the mirror. So we have read till here that a doctor who was homeopath didn't have much practice in medicals, and he didn't have much money, only 60 rupees with him, and he was desirous and wanted to make himself more handsome, and he made many plans to give his look more attractive. Like that, he would have mustache, thin mustache, saying that he was after all a bachelor and on the top of a doctor too. And he also desired to have a wife, and she also should be a doctor. She should have plenty of money, enough practice in medical sector, and she should be fatty. Giving a reason for being fatty, he said that if he made any silly mistake, she should not run after him. So he was thinking about it, and just then, when he was sitting on a chair, a snake from above landed on his shoulder, and till here we have read it. So let us resume the topic. वो कहता है कि सांप ऊपर से गिरा और मैंने उधर टर्न किया, तो दोनों जो इंसिडेंट थी हैपेंड एट द सेम टाइम. आगे क्या हुआ? आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई. कहता है क्राई आउट. सो ना तो कहता है कि मैंने जंप किया जब सांप मेरे ऊपर गिरा कंधे पे ऑन द शोल्डर. आई डिडंट ट्रेम्बल, ना मैं कांपा डरा, और ना मैं चिल्लाया. देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, ऐसा करने का वक्त ही नहीं मिला. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. अब कहता है जो सांप था कंधे से फिसल के बाँह पे आ गया और यहाँ पे कोइल्ड एक जकड़ सा दिया उसको. अबो एल्बो, एल्बो से ऊपर, एल्बो दिस पार्ट एंड अबो दिस पार्ट. सो इसको कोइल्ड बना लिया, इसके ऊपर सर्कल सा बना लिया. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. कहता कि उसका जो चेहरा था, यानी कि सांप का चेहरा नहीं, फन एक फैल गया, स्प्रेड आउट हो गया, और मेरे फेस से सांप का जो फन मुश्किल से हार्डली 3 से 4 इंच दूर था. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. और ये कहना उचित नहीं होगा, केवल यही कहना उचित नहीं होगा कि I sat there holding my, मैंने अपने सांस को पकड़े हुआ बैठा रहा. I was turned to stone, मतलब मैं पत्थर भी बन गया. But my mind was very active. कहते दिमाग बड़ा मेरा तेज था उस टाइम, एक्टिव था, पैरालाइज नहीं हुआ था. The door opened into darkness, दरवाज़ा अंधेरे की तरफ खुला. The room was surrounded by darkness, और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था. Because there was no the house, the room was not electrified. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. कहता है कि मैं वहाँ in the light of lamp, वहाँ लैंप की लाइट में sat there, stone पत्थर की मानिंद वहाँ बैठा रहा, जो कि पत्थर की इमेज उसमें फ्लैश हो, इस तरीके से. I felt then the great presence of creator of this world and this universe. God was there. कहता है मुझे उस समय क्या महसूस हुआ कि परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति दर्ज वहाँ पे मेरे को महसूस हुई. God was there, भगवान वहाँ था. Suppose I said something and he did not like it. कहता मैं उसको कुछ कहता और वो उसको नापसंद कर देता. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little hearts the words of God. कहता कि मैंने अपने दिल से
आई ट्राइड इन माई इमेजिन, मैंने अपनी परिकल्पना में, टू राइट इन ब्राइट लेटर्स, एक मैंने लेटर लिखने की सोची, मैं अपनी भावना रूपी उससे पत्थर से, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, अपने हृदय के बाहर से, कि द वर्ड ओ गॉड, हे भगवान देखो मुझे, बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, he was praying to God. There was some pain in my left arm, कहता मेरी जो लेफ्ट आर्म, दिस लेफ्ट आर्म में कहता पेन हुआ थोड़ा सा. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, कहता कि ऐसा दर्द मानो थिक लीडन रोड हो, एक लीडन यानी कि शीशे की जो धातु होती है वो चुभ गई हो मानो, ऐसा लगा. लेकिन कहता नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी मानो पिघली हुई आग हाथ पे हो, और वो स्लोली एंड पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, और धीरे से और ताकत के साथ मेरे हाथ को कुचल रही हो, ताकत को. द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू, और सारी ताकत मानो बह के चल पड़ी हूँ, मीन्स हाथ से, और मैं कुछ नहीं कर सकता था. At my slightest moment, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. कहता है कि at my slightest moment, थोड़ी सी भी अगर मैं गतिविधि करता, कुछ हरकत करता, the snake would strike me, मीन्स काट लेता सा. Death lurked, और मृत्यु मुझे 3-4 इंच दूर से देख रही थी, छुपी हुई थी पीछे. Suppose it stuck, मुझे काटता. What was the medicine I had to take, तो मैं क्या दवाई लेता. There was no medicine in the room, और मेरे रूम में, in spite of being a doctor, he didn't have a proper medicine if snake bit him. I was but a poor, a foolish and stupid doctor, कहता मैं शिवाय एक मूर्ख और एक गरीब सा व्यक्ति के अलावा कुछ भी नहीं था, ऐसा डॉक्टर था. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और मैं अपने आप के ऊपर, अपनी कमजोरी के ऊपर अंदर अंदर ऐसा, देख मैं कितना गरीब, डॉक्टर में, दवाई मेरे पास नहीं, सांप काटे तो मैं क्या करूं. ही वॉज लाफिंग एट हिमसेल्फ, बीइंग सो हेल्पलेस. इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, और मानो भगवान ने उसकी जो, उसका जो कोरेज था उसको अप्रिशिएट किया हो, एडमायर किया हो. द स्नेक टर्न इट्स हेड, सांप ने अपना चेहरा घुमाया. इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन. आई डोंट क्लेम दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक दैट एवर लुक्ड इनटू द मिरर, और सांप ने घूम के देखा, शीशा देखा. अब सांप शीशे की तरफ कहता है, उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी, अपने आप को देखा, अपनी रिफ्लेक्शन, अपने प्रतिबिंब को देखा, और कोई पहला सांप नहीं था. कहता मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से कहता है कि मैं कोई क्लेम नहीं करता कि ये पहला सांप हो जिसने अपने रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब को शीशे में देखा हो. बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू, ये बात पक्की थी कि स्नेक जो था मिरर को ही देख रहा था. वॉज इट एडमायरिंग इट्स ब्यूटी, वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये अपनी सुंदरता को निहार रहा था. बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyebrow and mascara or wearing vermilion spot on its forehead? अब कहता है कि तो ये मुझे पता नहीं whether it was male or female, और क्या अपनी जो सुंदरता की वो निहार रहा था और कोशिश कर रहा था एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की, अपने आप को और सुंदर बनाने की, किससे, ग्रोइंग मस्टेच, मूंछ उगा के, या यूजिंग आई शेडो, आँखों के ऊपर जो ये होते हैं ये, इसी को बनवा के आईब्रो जो होते हैं आजकल बनाते हैं जो, और मस्कारा और कोई सौंदर्य प्रसाधन या सिंदूर का तिलक लगा के, जैसे महिलाएं अपनी मांग में भरते उस टाइप से अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाहता हूँ. आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल. कहता है एक तो मुझे पता नहीं वेदर इट वॉज मेल और फीमेल. I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lip. कहता है कि I will never know, मुझे पता नहीं था कि स्नेक ने अनवाउंड किया, खोल दिया अपने हाथ से, जो उसने उसके हाथ को वो फोल्डेड किए हुआ था
उसको खोलते हुए वो आगे बढ़ा। स्लीदर फिसल गया इनटू द लेप, गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इनटू द टेबल, फिर टेबल पे आया। एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, फिर मिरर की तरफ मोमेंट कर गया आगे। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, कहता शायद वो अपनी सुंदरता का और ज़्यादा नज़दीक से देखना चाहता। आई वॉज no more image cut granite, I was suddenly a man of flesh and blood still holding my breath। कहता है अब मैं पत्थर की प्रतिमा नहीं बना था, मैं एक वो सडनली मैन ऑफ फ्लैश में जो हार्ड मास खून का आदमी होता है, इंसान होता है, वो बन गया था। वो स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अपनी सांस को फिर भी पकड़े हुआ था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, चेयर से खड़ा हुआ। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरंडा, वरंडे से मतलब डोर की तरफ वहाँ दौड़ता चला गया। और फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। और फिर मैं इतना तेज़ दौड़ा वहाँ से जितना मैं तेज अपनी पूरी ताकत से। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, ऑल ऑफ अस अ लिटिल बिट। अब कहता कि हम सभी ने, ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हम सभी ने। अब जो स्टोरी बताता है स्टोरी टेलर यहाँ पे अपनी कहानी बताता है डॉक्टर, तो हमने सभी ने राहत की सांस ली, स्टोरी सुनने वाले डॉक्टर ने। ऑल ऑफ अस लिट बीडीज, उन्होंने बीडी सुलगाई। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या तुम्हारी पत्नी मोटी थी बहुत? नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद ए गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। कहता है कि एक पतली सी, भगवान को कुछ और मंजूर था, मेरी लाइफ जो कंपेनियन थी वो पतली सी थी, रीडी बांस की तरह पतली सी, और स्प्रिंटर थी, तेज धावक थी। समवन एल्स आस्क्ड, और किसी ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, क्या जब तुम वहाँ से दौड़े तो तुम्हारा किसी ने पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच द फ्रेंड्स हाउस। मैं दौड़ता गया तब तक मैं अपने मित्र के कक्ष में नहीं आकर पहुंचा, घर में। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ। मैंने अपने आप को पूरे शरीर पे ऑयल का स्मेयर किया और स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू द फ्रेश क्लोथ, फिर मैंने अपने कपड़े दूसरे बदले। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, 8:30 बजे अगले सुबह, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। मैं अपने 2-3 मित्रों को ले गया अपने वहाँ से चीज़ें उठाने के लिए, उस रूम को मीन्स चेंज करने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी, लेकिन वहाँ पे जाके देखा तो लिटल टू कैरी, ले जाने के लिए कुछ को खास नहीं था वहाँ पे। सम थिफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर आया उसकी अधिकतर चीज़ें वहाँ से उठा ले गए। द रूम हैड बीन क्लीन आउट, रूम को साफ कर दिया गया। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग्स एज अ फाइनल इंसल्ट। अब जो चोर था, कहता है उसने भी मेरी इंसल्ट की, एक फाइनल इंसल्ट के रूप में एक चीज़ें छोड़ गया, सारी चीज़ों को वहाँ से उठा ले गए। और वो क्या थे? What was that? I asked। अब वो स्टोरी सुनने वालों में से एक ने कहा कि वो क्या थी? The doctor said, my vest, मेरी बनियान। The dirty one, the fellow had such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it and used after the rinse in soap and water। कहता है कि बड़ा बदतमीज था चोर, मेरी बेइज्जती कर गया, और जो मेरी एक बनियान थी उसको पीछे छोड़ गया कमीना। वो उसको ले जा सकता था, उसको उसकी धुलाई करके साबुन वगैरह से पानी में उसको रिंस करके उसको पहन सकता था, लेकिन वो छोड़ गया, मेरी इंसल्ट कर गया। डॉक्टर ऐसा कहता है। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? अब किसी ने पूछा कि क्या आपने अगले दिन उस जो स्नेक था उसको फिर देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। डॉक्टर आशा कहा कि उसके बाद मैंने इसको कभी नहीं देखा है, इस स्नेक को जो जिसके एनकाउंटर हुआ था उसका। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। ये ही अकेला ऐसा स्नेक था जो अपने ही सुंदरता पे मोहित हुआ जा रहा था, अट्रैक्टेड हुआ जा रहा था। So student, I hope you enjoyed this humor story very well, and
read it time and again and try to frame as many questions as you can, or keep practicing, keep learning. Have a great day. May God bless you.